Good morning students, I am your English teacher. Today we start half yearly syllabus. Today we learn chapter number 5, the death penalty. Please check out your English book and pencil also. The death penalty. About the lesson. This is a story of the Sultan who was good for his subjects but completely relied on his wazir for his every decision. ये स्टोरी है एक सुल्तान की जो प्रजा के लिए अपने साम्राज्य के लिए तो बहुत अच्छा था, एक अच्छा राजा था वो, बट उसमें एक कमी थी, वो अपने वजीर पे पूरी तरह से रिलायड रहता था. रिलायड मीन्स डिपेंडेंट होना. अंडरलाइन द वर्ड रिलायड. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे प्लीज अंडरलाइन. At the end of the story, he died because of one of his unjust decision. At the end of the story, वो एक unjust decision के लिए, अपनी एक गलत decision के लिए वो मारा जाता है. First, we will read chapter and after that I explain you. Long, long ago, there was a large and mighty sultanate in Arabia. It was prosperous as most of the people were traders who led large caravans to other places and traded goods for a good profit. The Sultan too was a good ruler. He looked after his subjects well. However, he was a little crazy in the head. He sought the advice of his wazir on all matters, big or small, and it made him take some decisions which he did not really mean to take. वो सुल्तान जो था वो अपने प्रजा के लिए अच्छा था, साम्राज्य के लिए अच्छा था, उसकी सल्तनत बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें रिच पीपल रहते थे. बट ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट वेल. वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह ध्यान भी रखता था. बट ही वॉज अ लिटिल क्रेजी इन हिज हेड. वो अपने वजीर से हर टाइम छोटी बड़ी बातों के लिए डिपेंडेंट रहता था. Unfortunately, the Sultan was a worried father. The young prince had suffered a stroke of paralysis, so he was a cripple. The disease was so acute that he was unable to sit up in the bed even. His illness was a cause of great anxiety for the Sultan. Naturally, he was anxious about who would ascend the throne after him. Please underline word cripple, acute, anxiety and throne. Unfortunately, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी उसके पास अच्छी सी सल्तनत थी, उसकी वो इतना अच्छा था, पर फिर भी उसके जो प्रिंस था, the Sultan was a worried father. Why he was worried? Because the young prince had suffered a stroke. जो उसका जवान बेटा था वो उसको पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था, वो बीमार था अक्यूट बीमारी से. मतलब अक्यूट मीन्स व्हाट, बहुत सीवियर, बहुत गंभीर बीमारी से वो बीमार था. एंड क्रिपल मीन्स व्हाट, अनेबल टू वॉक, जो चल भी नहीं पाए ऐसा व्यक्ति. His illness was cause of great anxiety. उसकी जो बीमारी थी वो राजा के लिए एक बहुत चिंताजनक कारण था. वो तो होना ही था क्योंकि उसको ये बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके सिंहासन पे कौन बैठेगा. थ्रोन मीन्स उसके सिंहासन पे, THRONE throne. The Sultan had summoned the ablest of medicine men and wise men from far and wide. उसने सुल्तान ने बहुत दूर दूर से लोगों को बुलवाया, अच्छी अच्छी मेडिसिन प्रिंस को दिलवाए, बट देयर वाज नो रिजल्ट. बट नन ऑफ देम हैड ब्रॉट एनी solace to the allied prince. Underline the word solace. Solace means relief होना, मतलब रिलीफ मिलना. ऐसी कोई भी दवाई नहीं थी जिससे प्रिंस को रिलीफ मिला या उसको बेटर फील करवाया. The ailment had proved stronger than the medicines which had so far been prescribed. As luck would have it, an old medicine man was traveling through the Sultanate with his young disciple. भाग्य से कहे या दुर्भाग्य से कहे, जो उसके सल्तनत में एक बार एक ओल्ड मेडिसिन मैन आया था. He was an able and experienced man and had cured the most incurable of diseases. Disciple means student. Underline word disciple. उसका वो जो शिष्य था, उस disciple. And incurable means
कभी ठीक न होने वाली, इनक्यूरेबल। He had earned a great name for himself. उसने बहुत नाम कमाया था, किसने? मेडिसिन मैन ने, अपने बलबूते पे, अब मेहनत करके अपने बलबूते पे उसने बहुत नाम कमाया था। His disciple named खलील, उसकी जो स्टूडेंट था उसका नाम क्या था? खलील। Was an able pupil of an able teacher, एक अच्छे टीचर का अच्छा स्टूडेंट था खलील। The teacher who had taught him all fine nuances of his trade, और उसके टीचर ने भी, जो मेडिसिन मैन थे, जो मेडिसिन फील्ड की जो बारीकियां थी वो खलील को सिखाई गई थी। प्लीज अंडरलाइन वर्ड नुआंसेस मींस बारीकियां। प्रेजेंटली दे स्टेड एट एन इन एट द एज ऑफ द कैपिटल टाउन, वो जो सल्तनत का कैपिटल टाउन था उसमें वो उसकी जो बॉर्डर पे वो रुके हुए थे किसी होटल में। इन मींस होटल, INN, इन मींस होटल, या आप कह सकते हो जहां पे उन्होंने आश्रय लिया था। Desiring to know about the Sultanate and its people, they talked to the innkeeper. उनकी जो उत्सुकता थी सल्तनत के बारे में जानने के लिए, तो उसके बारे में पूछने के लिए वो उन्होंने इनकीपर से उसकी जो जहां पे उन्होंने आश्रय लिया था उनके ओनर से वो पूछताछ करने लगे। The innkeeper informed them the Sultanate is prosperous and people are rich. However, the Sultan follows the advice of the Wazir in all matters and sometimes involves himself in unjust actions. God has rightly punished him for his craziness, as the prince has suffered a stroke of paralysis, whom nobody has been able to cure. सेम चीज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी वही उन्होंने इनकीपर ने उनको बताई कि सल्तनत तो हमारी बहुत अच्छी है, प्रॉस्परस मींस समृद्धि, बहुत समृद्ध है, वहां की प्रजा अच्छी है। सुल्तान वाज वेरी गुड, बट सुल्तान जो वजीर से सलाह लेता है, डिपेंडेंट रहता है वजीर पे, वो कभी कभार उसको वजीर क्या करता है, गलत चीजें भी उसको बताता है, तो वो अनजस्ट एक्शन के लिए भी इन्वॉल्व कर लेता है किंग को। गॉड हैज राइट पनिश, इसकी वजह से गॉड ने किंग को, सुल्तान को पनिश किया है और उसकी जो प्रिंस है उसको पैरालिसिस अटैक की बीमारी दी थी। At this, Khalil said, I should tell you that my teacher is an able medicine man, rather the ablest in the whole world. There is no element in the world which he cannot cure. खलील क्या कहता है कि मेरे जो टीचर है, जो मेडिसिन मैन है, जो मेरे साथ में मेरे गुरु जो है, वो बहुत एबल टीचर है, वो ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो वो ठीक नहीं कर सकते। The innkeeper said, Sir, I will send the word to the palace. Please cure the prince of his ailment. The sultan and people will be thankful to you. वो रिक्वेस्ट करता है उनसे कि प्लीज आप आपके मेडिसिन मैन को कहिए कि प्रिंस का इलाज करें। आप प्रिंस और सुल्तान बहुत थैंकफुल रहेंगे और यहाँ की जो प्रजा है हमारी वो भी बहुत थैंकफुल रहेगी आपके प्रति। The medicine man said, You see, I have to reach my destination as quickly as possible. But unfortunately क्या होता है, मेडिसिन मैन ने क्या जवाब दिया कि मुझे जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जिस जगह पे मुझे पहुंचना है, डेस्टिनेशन मींस जहां पे उसको पहुंचना है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, आई एम ऑलरेडी लेट क्विकली, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। आई लैक सो मच ऑफ टाइम एज ट्रीटिंग द प्रिंस वुड टेक, इट ऑट टू बी एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स। अगर मैं प्रिंस को ट्रीट करने लग गया तो कपल ऑफ वीक्स मेरे इसी में चले जाएंगे। कपल ऑफ वीक्स मतलब 2 वीक्स, 2 हफ्ते। When the innkeeper was gone, Khalil asked, Sir, it's so unnatural on your part. You never refuse to treat a lame person. You have happily treated the poorest man, but here is a prince. What's the reason for this strange behavior? उसको जब इनकीपर चला गया तब खलील ने पूछा, किससे? मेडिसिन मैन से पूछा कि ये आपका बिहेवियर बहुत अलग था, मैंने ऐसे आपको कभी नहीं देखा था कि आप तो गरीब से गरीब इंसान को ट्रीट करते हो, मतलब उनका इलाज करते हो, तो यहाँ तो प्रिंस है। Did you listen to what the innkeeper said? He said that the Sultan is a crazy man who follows the Wazir's advice in all matters. उसमें मेडिसिन मैन क्या कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, इनकीपर मैन ने क्या कहा कि ये सुल्तान जो है वो बहुत क्रेजी है, वो हर बात पे वजीर की एडवाइस लेता है। सच रूलर, रूलर मीन साम्राज्य, रूलर कैन बी डेंजरस, वेरी डेंजरस
noble profession does not allow abandoning an ill person. हमारा जो नोबल पर्सन है, जो खलील उन पे रिप्लाई करता है कि जो हमारा नोबल प्रोफेशन, नोबल मीन्स महान, अंडरलाइन द वर्ड नोबल एंड कॉन्साइन एंड अबैंडिंग ऑल्सो, ये जो हमारा महान प्रोफेशन है वो हमें अलाउ नहीं करता ऐसे किसी बीमार को छोड़ के जाने का। अबैंडनिंग छोड़ के जाना। एंड इन पर्सन माई कॉन्साइन डोंट अलाउ मी टू गो अवे, जो मेरे हम कहते हैं ना सेंस, ये अच्छा है या बुरा है, ये जानने की जो हमारी पावर होती है उनको बोलते हैं कॉन्साइन। तो ये जो है वो मुझे अलाउ नहीं करती है ऐसे इसको छोड़ के जाने को। आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रीट द प्रिंस, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप प्रिंस का इलाज करें। खलील ने उसकी वकालत करी उसके लिए। दैट्स माई फाइनल डिसीजन सेड द मेडिसिन मैन एज ही ले डाउन टू द बेड एंड फेल asleep। पर मेडिसिन मैन ने दैट्स माई फाइनल डिसीजन, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ये तो मेरा फाइनल डिसीजन है, और सोने चला गया। However, Khalil found the sleep elusive. He was not at ease at the very notion of not serving an alive man. Please underline the word elusive, ease and notion. Elusive means difficult to sleep, वो सो नहीं पाया। Ease means आराम से। Notion means धारणा, कि इस धारणा को लेके वो सो नहीं पाया कि एक बीमार आदमी को हम कैसे छोड़ के जाए। He respected his teacher very much, और दूसरी तरफ वो अपने टीचर की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, उनका अनादर नहीं करना चाहता था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। Dare not disobey his command. Finally he decided that he should stay back and treat the prince. फिर उसने क्या डिसाइड किया लास्ट में कि नहीं मैं तो रुकूंगा, प्रिंस का इलाज करूंगा एंड यहीं पे रुक के उनका पूरी तरह से इलाज करूंगा। इन द मॉर्निंग खलील स्टेटेड हिज माइंड टू हिज टीचर, जो उसके दिमाग में आया था वो सुबह होते ही उन्होंने मेडिसिन मैन से कहा। सर आई बेग योर पार्डन, ही सेड, बट आई कांट स्टैंड द आइडिया ऑफ मूविंग अवे विदाउट हैविंग क्योर्ड द प्रिंस। प्लीज ब्लेस मी दैट आई मे बी एबल टू क्योर हिम। सर बेग योर पार्डन, उसने पहले माफी मांगी और फिर कहा बट आई कैंट स्टैंड द आइडिया, ये जो छोड़ के जाने का, किसी बीमार को छोड़ के जाने का जो आइडिया है वो मैं बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए ताकि मैं, आप ब्लेस करना मतलब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रिंस का इलाज कर पाऊं। ऑल राइट, बट आई वॉन्ट यू नॉट टू स्टे अ मोमेंट लॉन्गर देन इज नीडेड एज इट वुड बी डेंजरस टू योर लाइफ। उसने मेडिसिन मैन ने उसको क्या सलाह दी, ठीक है पर जब आपकी यहाँ जरूरत खत्म हो जाए तो आप यहाँ ना रहे, ये उसने सलाह दी। Said the medicine man. Khalil discussed with his teacher how he should treat the prince, and then they parted away. Khalil ने डिस्कस किया अपने टीचर से कि मैं प्रिंस को किस तरह से ट्रीट करूं, मीन्स कौन सी दवाइयां देनी है, क्या उसको खिलाना है, लाइक ये सारी चीजें, और फिर वो अपने अपने दोनों रास्ते से parted away मीन्स अपने अपने रास्ते से चले गए। The innkeeper led Khalil to the royal court, where he was immediately admitted into the Sultan's audience. The dejected Sultan was hopeless. He allowed Khalil to treat the prince. Underline word dejected. Dejected Sultan means उदास होना, जो उदास सुल्तान था वो उसके पास जाके he allowed Khalil to treat the prince. उसने allow किया खलील को प्रिंस को ट्रीट करने के लिए। Khalil examined the prince thoroughly. Then he wrote down a long list of herbs and recipes. These were immediately fetched. He sat down, crushed, pound and grind them into a fine paste. Then he applied this paste on the affected parts of the prince's body. He also made a potion out of certain herbs and made the prince drink it. Underline the word potion, underline the word pound and okay. तो क्या हुआ, प्रिंस को थोरोली एग्जामिन किया, फिर उसने बहुत लंबी लिस्ट दी दवाइयों की, लाइक जड़ी बूटियों की, वो लाने को कहा, उनको ग्राइंड किया, उनको पीसा, उनको कूटा, और जो उसके अफेक्टेड एरिया था प्रिंस का, लाइक उसका जो वो उठ नहीं पा रहा था बॉडी का, जो जहां पे उसका पैरालिसिस का स्ट्रोक था, तो वहां पे उसको अप्लाई किया और उसने वो काढ़ा भी बनाया, तो वो उसको प्रिंस को पिलाया। The treatment went well, as the positive effect could be seen from the second day itself. The prince showed faint signs
of recovery at first, and then his recovery quick. पहले तो क्या हुआ, उसकी रिकवरी धीरे धीरे दिख रही थी, फ्रेंड दिख रही थी, पर बाद में उसकी रिकवरी बहुत क्विक होने लगी. The prince recovered from his dreaded diseases in 2 weeks' time, underline the word dreaded. The Sultan was very happy. He showed the most fabulous favor on Khalil. He declared a week of celebration in the Sultanate, and he appointed Khalil as the royal medicine man. उसने खुश होकर क्या किया, अपने सल्तनत में सेलिब्रेशन रखवाया और इसी खुशी में खलील को रॉयल मेडिसिन मैन बनाया. ओके, नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे.